से क्या होता है कि जो उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है. So the new capacity in this case C2 can be found out to be equal to the same charge Q, that is to be divided by V minus Vi in this way, and this is going to be the new capacity which is going to be actually greater than this one C1, because V न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है. बिल्कुल न्यूमरेटर हम देख सकते हैं दोनों का सेम है, लेकिन जबकि डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है, तो डिनोमिनेटर जैसे ही छोटा हो गया तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी बढ़ गया. इसीलिए कैपेसिटी इज फाउंड टू इंक्रीज by keeping an earth connected plate near a charged plate. Remember, this is called as the principle of capacitor. Okay, the principle of capacitor क्या कहता है? Simply the capacity of a parallel plate or capacity of a plate can be increased by keeping an another earth connected plate near it, and this is called as principle of capacitor. And in this system of two plates, ये जो दो plates का जो system है उसके अंदर जो capacity बनता है वो charge upon potential difference बनता है, ना कि सिर्फ potential. तो यहाँ पे पोटेंशियल के बदले क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. बिल्कुल. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी इन केस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और ये भी हमने देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो कितना बनता है. तो वो निकालने के लिए हमने दो फॉर्मूले इक्वेट किए थे. इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमने दो अलग अलग तरीके से निकाला था. सबसे पहले हमने देखा था, सपोज एक ये पैरेलल एक प्लेट है, सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेट. ओके, and this is suppose another plate which are kept parallel to each other. Okay, and suppose that this plate is charged with a positive charge. इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज Q इतना पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इस वाले प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं -Q. और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस हमने बोल के रखा है D, सपोज. तो D is going to be the distance between the two plates, and also that the two plates are having some potential difference between them. इन दोनों के बीच में potential difference कितना है? V इतना है. And the electric field which is produced in the space between the two plates is having the intensity that is equal to E here. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है तो वो यहाँ पे E रहने वाला है. E is going to be the electric intensity. Okay, and suppose that sigma, that is the surface charge density on the both of the plates, positive and negative. Okay, so using this, what we can say is we already proved that the electric intensity in the space between the two plates is given by the formula sigma upon epsilon naught. Correct है? ये हमने already prove करके रखा है. You can say that the electric intensity just outside the charge surface of any conductor of any shape is going to be actually sigma upon 2 epsilon naught. और एक्चुअली ये भी अगर आपको प्रूव करना है तो वो भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा है. अगर एक चार्ज प्लेट जो होता है, प्लेन शीट जो होता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है तो वो उसके लिए फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट. लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो फर्स्ट प्लेट जो है उसका इंटेंसिटी डाउनवर्ड्स रहने वाला है, और ये जो सेकंड प्लेट है, नीचे वाला प्लेट, उसका भी इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में रहने वाला है. और इसकी वजह से इन दोनों का जो इंटेंसिटी है वो ऐड होके यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, which actually becomes equal to sigma upon epsilon naught only. And this formula is for the electric intensity, where sigma can be replaced here. So sigma can be replaced by Q upon A, where Q is the charge and A is going to be the area. Remember. So if we replace it by that, then we get this intensity to be equal to Q upon A epsilon naught from one side. Okay, तो एक तरफ से हमको ये जो है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट, ये एक तरफ से फॉर्मूला हमको मिल रहा है. दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन नंबर 1, as we can see clearly. And at the same time we can find out the equation number 2. Yes, the equation number 2 can be found out by using the relationship between the intensity
electric intensity and potential difference and distance. We know that intensity is always equal to potential difference divided by distance. So we can say that this V is actually going to be equal to E into D. So that this value of E here can be put here in this formula so as to get it as देखो Q upon A epsilon naught into D. करेक्ट है? ये जो E का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल दिया और इसके आगे जो हम देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके आगे लिख सकते हैं इस तरह से, तो जो बनेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन नॉट इंटू D, जिसमें से हम Q अपॉन V निकाल के लेंगे। इसको थोड़ा अगर रीअरेंज करेंगे ना तो हमको ये पता चल जाएगा, ये A इस तरफ चला जाएगा नो डाउट, ये इप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला गया और ये जो D है वो इस तरफ नीचे चला गया दूसरे साइड में, जिसके कारण यहाँ पे हमको मिल गया Q डिवाइडेड बाय V and hence we get this as Q divided by V is going to be actually A epsilon naught upon D. But as we know that Q by V is going to be C, correct है? Q by V मतलब ही क्या होता है? कैपेसिटी होता है। इसलिए हमको यह मिल जाता है कि कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is actually going to be equal to A epsilon naught upon D for the air filled capacitor. Okay, air filled मतलब दो प्लेट्स के बीच में क्या रहने वाला है? एयर रहेगा। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो इस तरह से मिल जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और अगर दूसरा कोई मीडियम है तो उस केस में हमको ये मिलेगा ए इप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी, वेयर के स्टैंड्स फॉर द dielectric constant of the medium between the two plates. So this is going to be the formula for finding the capacity of a parallel plate capacitor, remember. Okay, तो ये हमको मिल गया कैपेसिटी का फॉर्मूला। ओके, अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है जब हम बीच में कोई डायरेक्ट्रिक डाल देते हैं। देखो ठीक से, अभी एक ये नया कंसेप्ट है, हमको इसको समझना है अच्छी तरह से। व्हाट हैपन्स व्हेन अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो सपोज ये एक कैपेसिटर का एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है, और मान लो कि ये जो दोनों प्लेट्स है वो दोनों अपोजिटली चार्ज्ड है। समझो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है प्लस क्यू इतना चार्ज यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। ओके, and suppose a negative charge is formed here on this second plate. Okay, तो ये जो सेकेंड प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नो डाउट। ओके, अभी हम देखते हैं ठीक से कि ये जो है Q is going to be the charge formed on the outer plate and minus Q is going to be the charge formed on the outer plate. Okay, but if suppose we keep a dielectric in between, तो यहाँ पे अगर कोई डायलेक्ट्रिक हम रख देते हैं अंदर, ये देखो ठीक से, अभी ये सपोज डायलेक्ट्रिक है, मतलब कोई भी इंसुलेटर अगर हम यहाँ पे अंदर डाल देते हैं, ये सपोज इंसुलेटर है, ठीक है, तो मे बी माइका, ग्लास और पेपर और वुड और एनी टाइप ऑफ इंसुलेटर कैन बी केप्ट हियर इन बिटवीन, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज, अब देखो यहाँ पे अगर ये इंसुलेटर अगर नहीं होता तो उस सिचुएशन में देखो ठीक से, इफ सपोज दिस एक एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे जबकि इंसुलेटर है, और एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे जब इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। तो समझो ये जो डायग्राम है, ये देखो राइट साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो है सपोज जब इंसुलेटर नहीं है, ओके, और सपोज कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है वो तब का जबकि इंसुलेटर बीच में है, ठीक है। अभी देखो ठीक से, ओके, अभी जब इंसुलेटर नहीं है बीच में तो बीच में जरूर एयर होगा, और इस एयर की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो वो उसका जो इंटेंसिटी है तो उसको हम बोल देंगे ई, सपोज चलेगा। ई इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स व्हेन इंसुलेटर इज नॉट देयर, मींस जस्ट एयर मीडियम इज गोइंग टू बी देयर इनसाइड द टू प्लेट्स। ओके, तो दोनों प्लेट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एयर है, तो उस समय का जो इंटेंसिटी है वो ई है, ठीक है, नो डाउट।
बट अभी क्या होता है देखो, ये जैसे हम इंसुलेटर यहाँ पे डाल देंगे, बीच में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, तो इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंडक्शन की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। देखो इस लेयर में एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे उस दिन भी बताया था, एवरी इंसुलेटर कैन बी पोलराइज्ड, and due to that polarization some charges are formed on the surface, and even यहाँ पे जो है इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। हम देख सकते हैं आराम से, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो चुका है। ओके, तो द इंसुलेटर के इंटरनल सरफेस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं इस तरह से, ये हम देख सकते हैं। और ये क्यों होता है ये भी हम समझ सकते हैं आराम से। समझो ये इंसुलेटर है, तो इस इंसुलेटर के अंदर जो डाइपोल्स होते हैं, तो वो डाइपोल्स रैंडमली डायरेक्टेड होते हैं पहले, और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर के जो डाइपोल्स है वो सारे डाइपोल्स इस तरह से बनते हैं, ये नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, ये इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, ऐसा बन जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, चलो ये जो अंदर का जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव चार्ज हर सरफेस पे बचा रहेगा, और इवन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरे सरफेस पे रेसिड्यू रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, बचा रहेगा। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सरफेस के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो कभी कैंसिल नहीं हो सकते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे ऐसा होता है कि ये पूरा जो कंडक्टर है या इंसुलेटर है वो एक्चुअली चार्ज्ड हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन, एंड देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द इंटीरियर हियर। तो यहाँ पे अंदर वाले रीजन में अगर देखेंगे ना, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। देखो बाहर में तो चलो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने ई बोल के रखा है, जो कि फिर भी होता था अगर ये इंसुलेटर नहीं होता तो, नो डाउट। लेकिन अभी अंदर में अगर देखेंगे तो ई तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनता है जो ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस तैयार करते हैं। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर। तो दैट विल बी गोइंग टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन हियर टू दैट ऑफ द applied electric field, and obviously it will be somewhat lesser, it will be somewhat smaller than the original electric field। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम E नॉट बोल सकते हैं, E नॉट। तो what is going to be the net electric field in the interior? Here it's going to be equal to E minus E naught, remember, where E naught is going to be the induced electric field due to the polarization। तो पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो उसको हम ई नॉट बोल सकते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, जबकि यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई माइनस ई नॉट है, तो ये फर्क पड़ जाता है। मतलब इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट गेट रिड्यूस्ड by some amount because of the electric this insulator। तो इंसुलेटर जब भी दो प्लेट्स के बीच में रखा जाता है तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी कम हो जाता है, और that reduction of the intensity is caused due to the polarization of insulator in this way। and already we know that अगर सपोज हमको ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर वैक्यूम में अगर E है, तो अगर इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, तो उस केस में क्या होता है कि किसी भी मीडियम के अंदर क्या होता है, इंटेंसिटी जो है वो E/K बन जाता है। ये बात याद है तुमको, 11th स्टैंडर्ड में हमने ये देखा है कि whenever charge is kept in a medium of dielectric constant K, its intensity just gets reduced by a factor K। So K is going to be the factor by which the intensity gets reduced up to। तो ये इस तरह से होता है, और इसलिए हम ये देख सकते हैं आराम से कि इंटेंसिटी E just changes into E/K, remember, and hence we can say that this E minus E naught exactly has to be equal to E/K, remember। तो ये जो E minus E naught जो है वो E/K के बराबर होना जरूरी है, और इसकी वजह से ही हम इसमें से E naught निकाल सकते हैं। देखो आराम से, E naught मतलब क्या है यहाँ पे, it is going to be the polarization intensity, the intensity due to the polarization। So we can just have this formula or this equation just shuffled। थोड़ा अगर shuffle करेंगे इसको तो हमको मिल जाएगा E minus E/K is actually going to be equal to E naught, right? So that we can say that
E naught is actually going to be equal to E कॉमन एंड ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन के. ये याद रखो अच्छी तरह से. So this is going to be the formula for finding the intensity in case of the induced charge. तो ये पोलराइजेशन चार्ज का जो इंटेंसिटी है, अंदर में जो इंटेंसिटी इंड्यूस होता है, तो वो निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज होना ऊपर करना पड़ता है याद रखो ठीक से. और इवन वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ऑल्सो. तो सिग्मा, अगर सिग्मा के फॉर्म में अगर हमको एक्सप्रेस करना है उसको, क्योंकि हमको पता है कि ई नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट. तो इसको हम सिग्मा आई लिख सकते हैं, वेयर सिग्मा आई और सिग्मा नॉट लिख सकते हैं, which is called as the induced surface charge density, and that is divided by epsilon naught, which is actually going to be equal to E के बदले क्या आएगा, sigma by epsilon naught into 1 minus 1 upon k, no doubt. And here epsilon naught can be cancelled from both sides, so as to get this as sigma naught is equal to sigma into 1 minus 1 upon k simply. तो ये हमको इक्वेशन मिलता है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के लिए, नो डाउट. ठीक है, अब ये देखो, इसमें एक बात हम समझ सकते हैं आराम से कि जैसे हम ये पोलराइज्ड या इंसुलेटर इसके बीच में रख देते हैं, तो उसका कैपेसिटी कैसे निकालेंगे. तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमको ये जो इंटेंसिटी है ई माइनस ई नॉट, ये जो नया इंटेंसिटी है वो जरूर यूज करना पड़ेगा. और देखो अभी इस केस में इस दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा. तो हम लिख सकते हैं V is going to be actually equal to the net electric intensity here, which is actually going to be E minus E naught into D, where D stands for the distance between the two plates, no doubt. But we already know that this E minus E naught is actually going to be E by K, right? So if we replace it by that, then we can get this as V is equal to E upon K into D. But E is actually, we know that this E is going to be actually sigma by epsilon naught, right? तो अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे फिर से, तो ये हमको मिल जाएगा V is going to be equal to sigma upon epsilon naught into K, because actually E is going to be equal to sigma by epsilon naught, and hence this sigma by epsilon naught into K into D, ये हमको मिलता है. But already we know that sigma is going to be Q upon A, so that we can get this as, तो सिग्मा के बदले अगर Q अपॉन A डाल देंगे तो हमको मिलेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू D, एंड हेंस वी कैन गेट दिस सिंपली एज, अच्छा अभी इसमें से अगर Q अपॉन B अगर निकालना है, तो ये A इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, इप्सिलॉन उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, K उस तरफ लेके गए, D को नीचे लेके गए, और इस तरफ बचा Q अपॉन V. But we know that Q upon V माना ही C होता है, that is capacity. So we can say that this Q upon V becomes equal to C, and hence we can say that this C is actually going to be equal to A epsilon naught K upon D, and this is going to be actually the formula for capacity of a conductor, or sorry, capacity of a capacitor when a insulator of dielectric constant K is inserted between the plates, two plates, in this way. Okay, तो ये बात याद रखो ठीक से. Just wait.
ओके, सॉरी, लेट अस कंटिन्यू। बेसिकली ये हमने देखा कि जब कोई भी कैपेसिटर के बीच में एयर फिल्ड होता है, एयर जमा होता है, तो उस केस में उसका जो कैपेसिटी है वो कितना बनता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, नो डाउट। लेकिन जब ऐसा कैपेसिटर होता है जिसके अंदर बीच में दो प्लेट्स के बीच में एक डायरेक्ट्रिक है या इंसुलेटर है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस केस में कैपेसिटर का कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, ए इंटू इप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। देखो एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, ये के एक्स्ट्रा ऐड हो गया याथ्रोपिटिक से। सो एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए यहाँ पे वैसे भी के इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे के बदले 1 डाल देंगे तो हमको एयर फील्ड कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटी का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन कोई भी दूसरा इंसुलेटर कंटेन करने वाला जो कैपेसिटर होता है, तो उसका जो कैपेसिटी का वैल्यू है वो हमको ए इप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी के बराबर मिलता है। और ये कैसे मिलता है वो हमने ऑलरेडी देखा कि नॉर्मली इंटेंसिटी जो है वो ई रहता है, लेकिन इंसुलेटर के पोलराइजेशन की वजह से इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ई नॉट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होता है ई नॉट, उसकी वजह से इफेक्टिव इंटेंसिटी कम हो जाता है, जो कि ई बाय के बराबर हुआ करता है। मतलब के इस फैक्टर से ही वो कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो ई बाय के है, दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द insulator. Okay, and using that we can see that the potential difference between the two plates can be actually written to be equal to the net intensity multiplied by distance between the two plates. And using this, net electric intensity is going to be E by K, right? And hence we can replace this E by sigma by epsilon naught as we have done it last time. And at the same time, this sigma can be replaced by Q by A. Already we have done it also in the last time. And that's why we can just rearrange this formula so as to get the Q by V ratio, which is called as capacity. And hence we get that capacity of this parallel plate capacitor to be equal to A epsilon naught K upon D, no doubt. चलो ठीक है, अभी और एक हम एक्सप्रेशन देखेंगे कि अगर सपोज एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसके अंदर डायरेक्ट्रिक जो है वो आधा भरा हुआ है और आधा मीन्स खाली है, एयर फील्ड है। तो देखो ठीक से, ये सपोज ऐसा एक कैपेसिटर है जिसके अंदर ये जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया हुआ है, नो डाउट। और यहाँ पे दूसरा प्लेट है जो कि निगेटिवली चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज फॉर्म किया हुआ है और ये दोनों प्लेट से ये कैपेसिटर बना हुआ है। ओके, लेकिन अगर इस प्लेट में इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, अब देखो ठीक से, ये डाइलेक्ट्रिक जो है, द डाइलेक्ट्रिक इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्लैब सपोज, तो इट्स गोइंग टू बी अ स्लैब इन दिस वे। तो ये इस टाइप का स्लैब रहेगा जो कि टी इतने थिकनेस का है सपोज। देखो ठीक से, इसका थिकनेस जो है वो टी है इस तरह से, और द टोटल डिस्टेंस जो है वो अगर मान लेते हैं, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, हाँ।
यस, सो बेसिकली अगर हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके अंदर ये इस टाइप का जो कैपेसिटर है, मतलब ये जो इंसुलेटर है, it is of thickness T and of dielectric constant K, which is here in this way. And suppose that the remaining rest of the space is empty. That means it is filled by air. And the total distance between these two is going to be actually D suppose. तो ये total distance तो D है, लेकिन इसमें से ये T minus D इतना जो distance है, sorry D minus T इतना जो distance है वो खाली है, दिख रहा है ठीक से? This is going to be D minus T, which is empty, whereas T is the thickness of this glass slab, which is filled with an insulator of dielectric constant K. Okay. तो अभी इसमें देखो होता क्या है ना कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो वो यहाँ पे कितना रहेगा इंटेंसिटी, वो तो ई रहेगा बिल्कुल, लेकिन इस स्पेस में बीच में यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगा, तो वो हम देख सकते हैं आराम से, in the plates between the two plates, in the space between the two plates, the intensity will get reduced by the factor k, and that's why the intensity here will be somewhat smaller, which is going to be actually E upon k. करेक्ट है? तो देखो ठीक से, E अपॉन के इतना इंटेंसिटी यहाँ पे रहेगा अंदर वाले रीजन में, ठीक है? तो इसकी वजह से होगा क्या, देखो ठीक से, कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। देखो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो हम देख सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे लेकिन क्या है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कितना होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं E इंटू डी माइनस टी, करेक्ट है? तो ये बन गया डिस्टेंस D माइनस टी, नो डाउट। एंड प्लस यहाँ पे फिर ये जो इंटेंसिटी है, इधर इंटेंसिटी कितना है, E बाई के है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा E बाई के, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ द डिस्टेंस हियर in which that intensity is spread out, that is going to be T actually, and hence we can just take this E common from this whole equation and get in the next step. See, it will be V is equal to E outside the bracket, and what is left inside, D minus T plus T by K, correct है? तो ये बन गया T by K, no doubt. And then we can just replace this E intensity by sigma by epsilon naught, because we already have this formula, E is equal to sigma upon epsilon naught, and if we replace it by that, then we get this sigma upon epsilon naught, and that is going to be actually equal to D minus T plus T by K, and hence we can get this as V is equal to, अच्छा सिग्मा के बदले भी हम क्या डाल सकते हैं अभी यहाँ पे, Q बाई ए डाल सकते हैं। देखो, तो ये बन गया Q अपॉन ए इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में आएगा D। अच्छा, इसमें से अगर हमने माइनस टी अगर कॉमन लिया, तो देखो अंदर में क्या बच रहा है, तो देखो माइनस टी कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन के, नो डाउट, एंड देन दिस विल बी जस्ट सिंप्लीफाइड और स्लाइटली रीअरेंज्ड so as to get the ratio of Q to V. After all, what we have to do is we have to find out the ratio of Q and V. तो इसमें से Q अपॉन V का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, तो देखो ठीक से, Q अपॉन V एक्चुअली बिकम्स, ये V नीचे जाएगा, ये पूरा इस तरफ जाएगा, तो आप हमको मिलेगा A इप्सिलॉन नॉट द होल डिवाइडेड बाय दिस D माइनस T in bracket 1 minus 1 upon K. That's it. So this is actually going to be the formula for finding this capacity of this such a capacitor whose which is partially filled with the dielectric and partly empty. A epsilon naught upon D minus T in bracket 1 minus 1 upon K, no doubt. So this is going to be the formula for finding this capacity of such a capacitor. Remember correctly? Okay. Now we will see the capacitors in combination. तो अगर सपोज कैपेसिटर्स हम कॉम्बिनेशन में अगर यूज करते हैं, तो जैसा कि 3 कैपेसिटर्स या 2 कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगा देते हैं या पैरेलल में लगा देते हैं, तो क्या होता है, उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना बनता है, तो वो हमको निकालना है। सपोज द 3 कैपेसिटर्स लाइक दिस,
ये सपोज पहला कैपेसिटर है, ये सिंबल है कैपेसिटर का, याद रखो से। ये दूसरा कैपेसिटर है सपोज, और ये तीसरा कैपेसिटर है, और ये तीनों कैपेसिटर्स हमने लगा के रखे हैं सीरीज में, इन सीरीज विथ अ बैटरी like this. Okay, this capacitors is suppose C1, and here it is C2, and this is C3 here. And suppose the potential difference of this battery is actually going to be V, which is divided into three parts, that is V1 and V2 and V3. Okay, ये तीन parts में ये बढ़ गया. Potential will get divided in series combination, whereas the charge will remain the same on all the three capacitors, just because जितना चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस कैपेसिटर के ऊपर, तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर गया, वो पूरा इस बैटरी में से घूम के इसके ऊपर चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से यहाँ से निकाले गए हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच गए, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा एग्जैक्टली उतना ही जितना इसके ऊपर फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और इंडक्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल। और एट द सेम टाइम यू कैन सी क्लियरली दैट द जितना भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी डेवलप होगा बिल्कुल। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि the charge on each capacitor is going to be the same, that is q each, we can say q is going to be the charge on each of the capacitor, but capacity is different and the potential difference is divided. So we can say that this total potential difference of the battery as a whole is actually going to be equal to V1 plus V2 plus V3, no doubt. But as we know that the potential difference capacity equal to क्या होता है, ये देखो सबसे पहला ये C1 के लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको मिलता है C1 इज इक्वल टू Q बाय V1, करेक्ट है। दूसरा C2 के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, C2 is going to be actually Q upon V2, और सेम वैसे ही C3 के लिए ही फॉर्मूला बनेगा सेम Q अपॉन V3, नो डाउट। और अभी देखो ये जो सिचुएशन है, दिस सिस्टम कैन बी मेड टू बी इक्विवेलेंट to an another system in which all these three capacitors will be replaced by a single one, which will be called as the effective capacitor of series combination of all these three. And why is it called effective, because अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है V, और तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो ही इस तरह से रहने वाला है, जो उसमें से इस बैटरी में से वो उतना ही चार्ज खींचेगा जितना एक कॉम्बिनेशन खींच पाता है। तो देखो ये पूरे अकेले कैपेसिटर के ऊपर V पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर उतना ही चार्ज आएगा Q जितना ये तीनों के ऊपर कंबाइंड आता है, दैट इज Q। तो इसलिए यहाँ पे इस कैपेसिटर को हम कहेंगे, इस CS को हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे इट इज द गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द थ्री कैपेसिटर्स। ओके, and if this is CS is the equivalent capacitance, then what is the relationship between this Q, C and V here? Again we can say that CS is going to be actually Q upon V, no doubt। तो अगर ये सारे वैल्यूज जो है वो हमने थोड़े अगर रीअरेंज किए, इस इक्वेशंस को अगर रीअरेंज किया थोड़ा सा, तो हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, करेक्ट है। दूसरा इक्वेशन मिलेगा V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, और तीसरा इक्वेशन मिल सकता है हमको V3 जो कि बनेगा Q डिवाइडेड बाय C3, और चौथा इक्वेशन हमको मिल जाएगा इसमें से भी V which is going to be equal to Q upon CS, no doubt। And then we can just be able to put this in this equation, original equation, that is V is equal to V1 plus V2 plus V3, so that we can get this as V के बदले क्या आएगा Q upon CS, right, which is going to be equal to V1 के बदले क्या आएगा Q upon C1, करेक्ट है। तो ये बन गया Q अपॉन C1 प्लस दूसरा V2 के बदले आएगा Q अपॉन C2, एंड तीसरा V3 के बदले आ जाएगा Q अपॉन C3। And now we can just take this Q common from both the sides and just cancel it out. So if we take this Q common from all the three sides, all the two sides, तो Q अपॉन CS तो वैसे ही रहा है, और Q कॉमन आ गया तो अंदर में बचेगा 1 अपॉन C1
plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. And then we can just cancel out this Q from both sides so as to get it as 1 upon CS. So see here, 1 upon CS is going to be actually equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is somewhat same as the resistances in parallel combination. If you remember in the 10th standard, तो 10th standard और 11th standard में भी तुमने ये देखा होगा कि चार रेजिस्टेंस, जब तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए जाते हैं, तो सॉरी पैरेलल में लगाए जाते हैं, तो हमको एक इक्वेशन मिलता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, जो कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री इसके बराबर हुआ करता है। तो अभी ये सेम फॉर्मूला जो हमको मिल रहा है, सेम वैसा ही फॉर्मूला हमको मिल रहा है, लेकिन ये अभी यहाँ पे सीरीज में मिल रहा है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मिल रहा है, जबकि रेजिस्टेंस में ये ऐसा फॉर्मूला हमको पैरेलल में मिलता है। बिल्कुल, तो याद रखो ठीक से कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का होता है वो कैपेसिटेंस का सीरीज में होता है। तो सीधी बात है कि अगर तीनों कैपेसिटेंस सेम रहेंगे तो फिर क्या होगा, 1 अपॉन सी एस विल एक्चुअली बी इक्वल टू 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C, which becomes equal to 3 upon C. And hence, if we take the reciprocal of both sides, then we get CS is equal to C by 3. In general, we can say that CS becomes equal to C by N if all N capacitors are there in series. तो अगर हमने 4 कैपेसिटर या 5 कैपेसिटर्स, कितने भी कैपेसिटर्स अगर हम लगाए थे सीरीज में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस जो है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो 1 अपॉन एन टाइम्स हो जाता है, तो डिक्रीज होता है। ये हमको समझना है। दिस हैपेंस इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ विल सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो हम गेस कर सकते हैं वही होगा जो रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। सपोज these are the three capacitors which are connected in parallel like this. ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और सपोज ये तीसरा कैपेसिटर है जो पैरेलल में लगे हुए हैं। देखो ऐसे, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जिसका पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ कनेक्टेड है। ठीक है, ये पहला वाला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी हम मान लेते हैं C1 है, सेकेंड वाले का C2 है, और थर्ड वाले का C3 है। अभी जबकि हमको पता है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन द होल सिस्टम रिमेन्स द सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी द सेम, बट चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ चले जाएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा वो हो सकता है Q1 बन जाए, इस पे जो चार्ज फॉर्म होगा वो हो सकता है Q2 हो, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q3 बनता है सपोज। ठीक है, तो charge is going to be different on different capacitors, but the potential difference is going to be the same, no doubt. So Q1, Q2 and Q3 are going to be the charges on these three capacitors in this way. Okay, the total charge on the whole combination is suppose going to be Q. अभी इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों को रिप्लेस करके एक ही कैपेसिटर हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये सिंगल कैपेसिटर यहाँ पे काम करेगा ये तीनों का, और इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्यों, क्योंकि सेम बैटरी में से सेम चार्ज वो खींच पाएगा, उसका कैपेसिटी ही ऐसा होगा, तो उसको हम बोल देंगे Cp, which is such that it extract the same charge Q from the same battery of potential difference V, no doubt, and that's why it's called as effective capacitance of all these three capacitors connected in parallel. Okay, so in this case what will happen is Q actually is going to be equal to Q1 plus Q2 plus Q3, but as we know that the capacitance C is equal to क्या होता है, Q upon V होता है, तो C1 will actually be equal to Q1 upon V, because V is going to be the same for all the capacitors because they are connected in parallel. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है, इसलिए यहाँ पे V1 V2 V3 नहीं आएगा, V आएगा सिर्फ। और इसमें C2 के लिए क्या बनेगा, तो हम बोल सकते हैं Q2 अपॉन V, और C3 के लिए बन जाएगा Q3 अपॉन V। और जो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है Cp, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हम वो भी निकाल सकते हैं आराम से, और बोल सकते हैं इसको Cp इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू द कैपेसिटी
charge Q that is to be divided by V. And if we put all these values in this equation here, इस equation के अंदर अगर हम ये सारे values डाल देंगे तो हमको मिलेगा Q. Q के बदले क्या आ रहा है? अच्छा, पहले हम इसको रीअरेंज करके लेंगे तो हमको मिलेगा Q1 which is going to be equal to C1 into V. करेक्ट है? C1V. Q2 मिलेगा C2 into V. Q3 मिलेगा C3 into V. और चौथा मिलेगा Q which is going to be CP into V. Okay, so if you put all these values in this equation, original equation, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, then we can get simply it as CP into V, that is equal to C1 into V plus C2 into V plus C3 into V as well, so that we can take this V common from the left hand side and we'll be left with C1 plus C2 plus C3 and that is multiplied by V, so that V can be cancelled and we'll be left with Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. Now if you remember, in when the T3 resistances are connected in series, then the series effective resistance of series combination actually happens to be equal to R1 plus R2 plus R3. याद है सबको? तो जो रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज में होता है वो यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में पैरेलल में होता है, तो उल्टा है बिल्कुल, ये हमको याद रखना अच्छी तरह से. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. So when the capacitors are connected in parallel combination, then the capacities are get added together, and obviously if there are n capacitors which are same in value, then the effective capacitance of the series combination will be equal to n times of that C, where C is going to be the capacitance of each of these capacitors. So remember this formula for parallel combination, remember. Okay, so that's all about this lecture, today's lecture. So we have seen like what is the series combination and parallel combination, and what is the formula for capacity of a capacitor, even if it is air filled or it is filled with the insulator of dielectric constant K. Okay. Yes, Omkar. नहीं सर, गलती से ओपन हो गया. अरे काय को करते हो ऐसा? ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, नहीं तो फिर मैं एंड करता हूँ लेक्चर. Okay, so thank you all of you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.